Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So today we will begin a new topic in sensor network, that is transport layer. Until last class we discussed about the medium access control. We discussed about transport layer. So we will quickly revisit the transport layer functionalities in computer network. The basic functionality of transport layer is to provide end-to-end. What is that end-to-end? What is it? End-to-end? Reliable communication. Reliability. Okay. So the purpose of saying, the reason for saying end-to-end reliability means the only endpoints in the communication link are responsible. Okay, are responsible for ensuring reliability, right? So in a wireless sensor network or any multi-hop, see, this is also a wired network, is also a multi-hop network, but in the wireless multi-hop network things are different. Okay, so there is a difference between multi-hop wired and wireless networks, right? Difference in multi-hop wired and multi-hop wireless networks. What is the difference here? In multi-hop wired network, this is the scenario is fairly reliable. Okay, fairly reliable. I mean connection is fairly reliable, whereas in wireless network it is mostly unreliable. Okay, unreliable. If it is a static wireless network, then the connectivity issues arise from channel contention. Okay, and if it is a mobile wireless network, then issues increase due to again non-line of sight. It can be due to again medium access control, I mean the channel access, and so on and so forth. So in general we say that in wireless network the connectivity is mostly unreliable. Okay, and it becomes more unreliable as we move from static wireless networks to mobile wireless networks. Okay, so if we go for end-to-end reliability, mechanisms that are used for multi-hop wired networks, right? Those schemes or those mechanisms will not work well for
wireless networks, right? What is that? That the end-to-end schemes for multi-hop wired networks do not fit, okay, do not fit the multi-hop wireless networks. Why? End-to-end schemes for multi-hop wired network do not fit the multi-hop wireless network. Why? Why they do not fit? Because of the difference in reliability of the network. Can you go? So, like for example, in wired networks, we mostly rely upon retransmissions and all. So, but Okay. it will be very costly in this. In what sense? In what sense? Like maybe like we have to retransmit multiple times to finally transmit all the data successfully. Okay. 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 So let us think that what you say, that when there is reliability means we depend on the retransmissions. Okay, so reliability we depend on retransmissions. So now we have, let's suppose we have a data like I'll just tell, it's a small mathematical model for it. Okay, let's suppose you have lambda in as the input arrival rate. Okay, it is the arrival rate of traffic. Okay, lambda in. So lambda in, when no loss occur, obviously lambda in will be equal to lambda in dash. Okay, I'm just taking another variable, lambda in dash. When no loss occur, lambda in is equal to lambda in dash, which means we can say that lambda out, that is the traffic going out of a node, for example, you see this is a node, intermediate node, okay, and this is receiving some traffic, lambda in, and this is lambda out. Okay, so when no loss occurs, all the lambda in will emerge out of this node. So lambda in will be equal to lambda out, right? When no loss occurs. Now suppose there are some losses occur. Okay, let's suppose when some losses occur, right? So what will happen? Lambda in dash will be equal to the original traffic, that is lambda in, plus the retransmissions, right? Plus retransmissions. So in that case, what will happen? Lambda out will be less than lambda in. Is it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, lambda out will be less than lambda in. So what is happening here? That a congestion kind of scenario is building up here. So gradually what will happen? You see, there is increase in load. So this means that due to this, due to this, due to
due to this retransmissions, what is happening? Load is increasing. Load is increasing. Load is increasing, right? So this increase in load leads to decrease in what? Useful work. What is this useful work? It's basically the throughput. Data transmission. Data transmission. How many successful transmissions are taking place? Right? So that's what we refer to as useful work. So as load increases, the useful work done will decrease. Right? Useful work will decrease. Why? What are the causes? Because of these retransmissions. The causes are because number one, spurious retransmissions. Right? And second thing is that retransmissions are happening because not all the packets transmitted are being received by the receiver. So we can say here that undelivered packets. So because of these two reasons, there is a decrease in useful work, right? Yes, sir. So if you put it graphically, we'll see it like this. Throughput, okay, and this side we'll say load. So what happens? The senders will push their traffic into the network, and let's suppose it goes like this. It increases, okay, and at one point, are you following, students? Yes, sir. At one point, yes, at one point the network will get saturated. I mean, the link will get saturated, right? The link will get saturated. After that, what will happen? Any additional introduction of traffic into the network will not increase the corresponding throughput, because अभी link saturate हो गया है. अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि what will happen? No useful work will be done, क्योंकि ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है और आगे कुछ भी वो डिलीवर नहीं हो रहा है, right? So the amount of, I see this is amount of traffic, okay, or say input traffic increases and no delivery takes, or I can say successful delivery, okay, no successfully delivery takes place. तो इसके बाद क्या होगा? समझ में आया? Yes, sir. So this is the point we refer to is the cliff, and this we refer to as congestion collapse. मतलब कि इतना नेटवर्क सैचुरेट हो गया और इतना इनपुट ट्रैफिक आया कि there is absolutely drastic decrease in the useful work. ये देखो, drastic decrease in the useful work. देखो आते आते फिर थ्रूपुट 0 तक आ गया, क्लिप से लेकर थ्रूपुट 0 तक आ गया. So drastic decrease in useful work, and this drastic decrease in useful work is referred to as congestion collapse. And this congestion collapse causes the throughput to reach from a cliff value to, or the maximum network capacity to, or utilization to
जीरो यूटिलाइजेशन। जीरो यूटिलाइजेशन तो मतलब हम ऐसे इनफॉर्मली कह रहे हैं, जीरो यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि नेटवर्क इतना यूज हो गया, ओवर यूज हुआ कि इफेक्टिव थ्रूपुट जीरो हो गया। सो दिस पॉइंट विल रेफर टू एज ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन। तो ये क्लिफ क्या हो गया, दिस इज, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये जो पॉइंट रहा तुम्हारा, थ्रूपुट इंक्रीज होता गया, देखो जीरो से थ्रूपुट इंक्रीज होता गया, होते होते मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच गया, मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच गया, मतलब दिस इज फुल 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द नेटवर्क और द लिंक। लेकिन और भी ट्रैफिक इनपुट होने के, देखो यहाँ पे लोड और बढ़ रहा है, और लोड बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया, फिर भी लोड बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ लोड ऑफर्ड इनटू द नेटवर्क इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाद में पैकेट ड्रॉप होने लगता है, रिट्रांसमिशन होता है, सो मतलब और कचरा हो जाता है in very raw language, okay, और कचरा हो जाता है। So what happens कि it gets so overutilized that this is absolutely zero useful work being done. So there is a sharp drop in the useful work done or throughput, what we refer to as congestion collapse and overutilization of ठीक है। और इसका डिले कर्व कैसे होगा, इसका डिले कर्व कैसा, अगर इसको डिले कर्व हम देखें, सो दिस इज लोड एंड दिस इज डिले। डिले कैसा होगा, डिले, अब जब यहां तक आ गया, डिले कैसे होगा, ये जैसे नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ रहा है, डिले क्या होगा, डिले बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे जाके डिले इंफिनिटी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि इतना डिले बढ़ गया, इतना नेटवर्क में कंजेशन हो गया कि कंजेशन कोलैप्स हुआ, यानी कि नेटवर्क ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, डिले हो गया। ये देखो, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू डिस्क्राइब द थ्रूपुट वर्सेस डिले। समझ में आया? Yes. Sir, after the cliff, all packets will be dropped or some will be still transmitting? It's very unlikely, very unlikely. It's very unlikely that all packets will be, I mean, some packets will be reaching, and even if they reach, it doesn't make any sense. क्योंकि अगर 100 एक ट्रांसमिशन का अगर 100 पैकेट का इंफॉर्मेशन होगा, मैंने एक इंफॉर्मेशन अगर 100 पैकेट में होगा, तो उसमें से अगर मेरा 20 ही पहुंचा, तो फिर बाकी 80 तो चला गया ना मेरा, Okay. राइट। सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा डिले। ये देखो अभी दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि जैसे तुम्हारा ये इनपुट बढ़ रहा है, डिले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जहां कंजेशन कोलैप्स हुआ, डिले इन्फिनिटी की तरफ चला, ठीक है। Yes, sir. So from this perspective, now tell me why this mechanism, why this scenario becomes more intense or more serious in case of multi-hop wireless। ये तो हमने इन जनरल एक बात कही। अब हम पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि हमने यहाँ पे जो बोला कि एंड टू एंड स्कीम्स फॉर मल्टी, वाई। सो अब आप मेरे ख्याल से वाई इसको देख के, क्योंकि ये रिलायबल कम्युनिकेशन है वायर्ड सिस्टम में, तो आप कुछ हद तक इस तरह का एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स है, वो जिन एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है, अगर दैट एप्लीकेशन इज अ डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन, लेट्स सपोज दैट्स अ डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन, राइट, और डिले इंटॉलरेंट एप्लीकेशन, मतलब कि कोई भी डिले वो सह नहीं सकता है। सो एनीथिंग, एनी recorded any sensed information or the sensed information
the sensed information must be received by the application without any delay. डिले, विदाउट एनी एक्सेप्टेबल डिले मान के चलो, हाँ विदाउट एनी। तो उस समय क्या है कि ये जो डिले है आपका, ये डिले यहाँ पे जैसे डिले बढ़ रहा है, सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म विल नॉट बी एबल टू मीट द एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर हम वो मैकेनिज्म्स यहाँ लगाते हैं तो यहाँ भी रिट्रांसमिशन होगा, रिट्रांसमिशन होने के चलते डिले बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक सेंसर नेटवर्क में जैसे हम ऐसा करते हैं, ये एक नेटवर्क अगर हम बनाते हैं सेंसर नेटवर्क में है, ठीक है, तो इधर अगर हमारा बेस स्टेशन है, ये हमारा बेस स्टेशन है, अगर डेटा यहाँ से जाता है तो ये ऐसा क्या मान लो, ऐसा होकर गया मान लो, ठीक है। तो और ये जो रिले नोड है, ये जो इंटरमीडिएट नोड है, हो सकता है ये भी डेटा भेज रहा हो यहाँ से, हो सकता है ये भी डेटा भेज रहा हो यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर yes, this intermediate node is I mean more load is offering to this, so मैं इसको क्या कहूंगा कि load offered to this node is increasing, है कि नहीं, is increasing। तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ड्रॉप होने का चांसेस है, डिले बढ़ने का चांसेस है, ठीक है। सो हमारा कहने का मतलब है कि अगर एप्लीकेशन डिले इंटॉलरेंट है तो ये जो डिले इसके चलते हो रहा है उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंड टू एंड स्कीम लगाते हैं, तो ये दो जो ई है, एक ई हो गया सोर्स और दूसरा ई हो गया बेस स्टेशन। तो एंड टू एंड स्कीम लगाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ नहीं, इसके बाद फिर नॉट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नॉट रिसीव्ड बताएगा, ठीक है। माने कि ये जो सेंडिंग एंड है एंड रिसीविंग एंड है, सेंडिंग एंड जब या तो टाइम आउट के बाद फिर से रिट्रांसमिट करेगा या एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी जाकर रिट्रांसमिट करेगा, तो उसके बीच में क्या होगा, ये डिले, क्या हो जाएगा, डिले, क्या असर पड़ेगा डिले के ऊपर, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज है, ये जो लिंक्स है, ये लिंक्स तुम्हारा वायरलेस लिंक्स है और इसमें तुम्हारा मीडियम एक्सेस कंट्रोल चलेगा, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस ही होगा। एंड व्हाट इज द गारंटी दैट ए नोड ट्राइंग टू ट्रांसमिट अ पैकेट in a given period will always get the channel access to channel, and why that delay will not be more than the delay accepted here, delay given here, हो सकता है। तो ये सब कारण के चलते नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू चैनल्स एंड पैकेट ड्रॉप्स एंड contention, channel contention, all the issues contribute to increase in delay, ठीक है। सो ये जो increase in delay is due to क्या है, चैनल कंटेंशन और चैनल, ठीक है, चैनल कंटेंशन, और क्या हो सकता है, रिट्रांसमिशन, ठीक है, और क्यूइंग डिले भी हो सकता है। तो ये सब चीजों को मिलाकर जो डिले हो रहा है, दैट डिले इज which is more than applications acceptable delay। तो इसीलिए हम ये कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि the end-to-end mechanisms used by transport layer protocols for wired networks cannot be applied directly to the transport layer protocols meant for wireless networks. Any question? No, sir.
सो यहां पे हम ये कहेंगे कि instead of end-to-end protocol, instead of end-to-end protocol, I mean to say that end-to-end reliable transmission, instead of end-to-end reliable transmission, हम hop to hop reliable transmission के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं. So instead of this, hop to hop will be better. Why? Hop to hop will be better. Why? अगर यहाँ पे लॉस होता है तो it doesn't has to wait for the entire timer to run out before it attempts for retransmission. समझ गए? तो वो जो टाइम आउट तक वेट, एक्सपायर तक वेट नहीं करना पड़ रहा है, वहीं पे हम डिले को सेव कर रहे हैं. अगर हम एंड टू एंड के ऊपर जाएंगे तो हमें टाइम आउट तक वेट करना पड़ेगा टिल द टाइमर एक्सपायर्स. ठीक है, और रिकवर करना फिर से सोर्स ही आपको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, सोर्स को ही रिट्रांसमिट करना पड़ेगा. तो यहां पे हम क्या करें कि हॉप टू हॉप बेसिस पे ये कर रहे हैं. सो हम इसको एक सिंपल तरीके से समझ ऐसा सकते हैं कि लोकल रिट्रांसमिशन और लोकल रिकवरी हम कहेंगे. लोकल रिकवरी मतलब कि अगर पैकेट यहां लॉस हो कि यहां लॉस हो, कहीं भी लॉस हो, कन्वेंशनल केस में सोर्स को ही रिट्रांसमिट करना पड़ता था, राइट, वायर्ड रिट्रांसमिशन स्कीम में. अभी क्या करेंगे कि लोकल ही रिकवरी होगा. तो अगर यहाँ पैकेट अगर ये हुआ तो इस पॉइंट पे ही रिकवरी होगा. तो इससे क्या फायदा हुआ कि इट डज नॉट हैज टू वेट फॉर द टाइमर टू एक्सपायर एंड सोर्स को फिर से ये नहीं करना. मतलब इतना जो रिसोर्सेस उसने यूज कर चुका है पैकेट ट्रैवल करने के लिए यहां तक, ठीक है, दोबारा इस रिसोर्स का यूज नहीं होगा. तो रिट्रांसमिशन इस रीजन में जो होता था, अननेसेसरी वेस्ट होता था पावर, सॉरी वेस्ट हो जाता रिसोर्सेस, वो चीज बच गया. तो इसी लेवल पे ही रिकवरी होगा. अगर इस पॉइंट पे अगर हुआ है तो ये हो गया तुम्हारा सोर्स और ये हो गया तुम्हारा डेस्टिनेशन, इस पार्ट के लोकल पार्ट के लिए. ठीक है, अल्टीमेटली ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, लेकिन इस पार्ट के लिए ये सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया. तो रिकवरी जो होगा यहीं पे होगा. सो ड्यू टू दिस लोकल रिकवरी, यानी कि हॉप टू हॉप और लोकल रिकवरी, ये जो तुम्हारा चैनल कंटेंशन कम हो गया, रिट्रांसमिशन भी थोड़ा कम हो गया, क्यूइंग डिले भी थोड़ा कम हो गया. सो द ओवरऑल डिले जो था वो भी कम हो गया. एंड दैट इज हाउ दिस ओवरऑल डिले is able to meet the application's low delay requirement. Clear, students? Yes, sir. Sir, but if we have a local recovery, then we have to provide more storage at each of the hops, Yes. and it will More increase the storage- battery usage. ना? नहीं, मोर स्टोरेज मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि किस तरह का ट्रैफिक को सेंसर नेटवर्क डील करता है, राइट. सो यहाँ पे अगर आप ये समझेंगे व्हाट इज द ट्रैफिक टाइप dealt by WSNs. नॉर्मल नेटवर्क में क्या होता है कि जो ट्रैफिक टाइप है ये मोस्टली कंटिन्यूअस ट्रैफिक है. ठीक है, मोस्टली कंटिन्यूअस ट्रैफिक है. कंटिन्यूअस ट्रैफिक मतलब क्या हो कि परसिस्टेंट ट्रैफिक, लॉन्ग ट्रैफिक. जैसे हम बात कर रहे हैं अभी वॉइस है, वी आर टॉकिंग फॉर 1 आवर एंड फॉर 1 आवर the data rate will be very high. Video traffic, the data rate will be very high and it is consistent in normal network. But wireless sensor network में जो deployment होता है वो basically to monitor something, monitor and take action something. तो इसमें जो wireless sensor network में जो traffic type होता है mostly that are either periodic and short
Burst. ठीक है, शॉर्ट अमाउंट। और कभी कभी बर्स्टी ट्रैफिक होता है, बट माने कि बस्ट एंड वेरी शॉर्ट अमाउंट, एक साथ आएगा, छोटा सा आएगा। मान लो कि टेम्परेचर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ इस रीजन का, ठीक है, मैं टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा, वहां पे लिखूंगा नोट पे कि वेन एवर टेम्परेचर एक्सिड्स, आई मीन आई कैन से दैट इवेंट बेस्ड ट्रैफिक उसको, ठीक है, इवेंट बेस्ड ट्रैफिक। इवेंट बेस्ड ट्रैफिक मतलब क्या हो गया, तो मैं बताऊंगा whenever temperature exceeds 50 degree centigrade, inform me, ठीक है। तो टेम्परेचर जब तक 50 डिग्री नहीं होगा तब तक कोई भी डेटा नहीं जाएगा, और जैसे ही 50 डिग्री से ऊपर होगा तब जाएगा। लेस देन 50 नहीं जाएगा, ग्रेटर देन 50 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा, तभी जाएगा डेटा। सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस आई कॉल एज इवेंट बेस्ड, मतलब कि 50 डिग्री जब क्रॉस किया उसको मैं एक इवेंट की तरह ट्रीट किया, और it will inform so a traffic. So what I say that this traffic is not periodic, this is an event based traffic. समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. और पीरियडिक ट्रैफिक क्या होगा कि हर 10 मिनट में मुझे यहाँ का टेम्परेचर बताना, तो हर 10 मिनट में जाएगा। तो जो ट्रैफिक टाइप जो है वो आपका कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है और उतना वॉल्यूमेट्रिक नहीं है। दे आर ऑफ शॉर्ट अमाउंट एंड इधर दे आर पीरियडिक और दे आर इवेंट। सो इसीलिए आपने जो सवाल किया, ठीक है, वो चीज यहां लागू नहीं है Yes, कि sir. बहुत ज्यादा बफर प्रोविजनिंग का जरूरत नहीं है। सो इसके चलते बिकॉज ऑफ दिस बफर प्रोविजनिंग, लार्ज बफर स्पेस provisioning is not required in WSL, ठीक है। Yes, sir. सो ये जो लोकल रिकवरी है, इसको कहा जाता है कि ये जो लोकल रिकवरी, और इसको हम जो कहते हैं हॉप टू हॉप रिकवरी, ठीक है, हॉप टू हॉप रिकवरी, इसको हम कहते हैं कि पंप स्लोली, फेच क्विकली, और इसको PSFQ बोलते हैं। पंप स्लोली फेच क्विकली का मतलब है कि पंप स्लोली मतलब सोर्स नोड होगा, सोर्स कोई भी हो सकता है हॉप टू हॉप, ठीक है, हर हॉप पे ये तुम्हारा सोर्स हो गया और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन हो गया, और फिर ये एक हॉप है तो ये तुम्हारा सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोर्स जो है ये स्लोली पंप करेगा मतलब स्लोली पंप मतलब कि gradually increase or gradually I'll say that push or I can say that transmit data, gradually transmit data, ठीक है। और ये जो ग्रेजुअली या स्लोली जो है, और स्लोली इससे फायदा क्या हुआ कि नंबर ऑफ लॉसेस, amount of loss will be less at this point, the losses will be less, क्योंकि फिर से आप इस डायग्राम पे चले जाओ, अगर स्लोली पंप होगा तो ये जो टाइम टेकन टू रीच दिस मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द चैनल विल बी मोर, समझ पा रहे हो, विल बी मोर। और इसके बावजूद, सो दैट इज ए काइंड ऑफ प्रिकॉशन टेकन बाय दिस प्रोटोकॉल in order not to make the link what you say saturated, in order not to make the link saturated, ठीक है, or the time taken for the link to get saturated is more, ठीक है। सो पंप स्लोली का रीजन ये है।
एंड फेच क्विकली इसलिए कहा जाता है कि इवन देन, इवन आफ्टर स्लोली पंपिंग, there can be a possibility that channel will get saturated and there will be packet drop. ठीक है, there will be congestion. So उस केस में क्या होगा, recovery should take place locally, right? So recovery takes place locally. Recovery takes place locally. So locally होने के चलते क्या होगा कि डिले कम, डिले लेस होगा. So that is the objective of pump slowly, fetch quickly. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? नो सर. तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों. तो आज का जो रीडिंग मटेरियल है मैं अभी भेज देता हूँ. ओके सर. ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को त्योहार के टाइम पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, ये अनयूजुअल सिचुएशन है, कोरोना वोरोना के चलते सब कुछ हॉटपॉट से चल रहा है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन. योर ऑल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू समहाउ फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग निकाल दें. ठीक है. Okay, sir. Sir, can we expect the college of reopening in first semester? बेटा देखो, अभी वैसे मिनिस्ट्री से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आप लोगों का सब इस सेमेस्टर का जो कोर्स है सब खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा. तो एटलीस्ट न्यू ईयर से पहले मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ आना पड़े. तो जितना दिन तक आप अपने घर पे रहे उतना अच्छा है हमारे लिए भी और आपके लिए भी. ओके सर. ठीक है. Yes, sir. तो मेरा सोचना ये है, अगर सरकार बोलता भी है कि हाँ नहीं खोल दिया गया, फिर भी आपको यहाँ आने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कोर्स सब खत्म हो चुका है. यस सर. समझ गए ना. तो आप यहाँ आएंगे तो पढ़ने के लिए आएंगे, और पढ़ना अभी होगा नहीं, सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा, तो आपको आने की जरूरत नहीं है उस हिसाब से. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू फिनिश ऑफ द कोर्सेस एज अर्ली एज पॉसिबल, माने कि इन टाइम. तो जो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक या ये तक जो हमारा हमेशा होता था यूजुअली, तो उसी समय में हम खत्म कर देना चाहते हैं ताकि नेचुरली भी कंप्लीट हो जाए और आपको किसी भी कारण यहाँ पे आना ना पड़े, जनवरी तक टल जाए. और जनवरी तक सिचुएशन बेहतर होगा तो अच्छी बात है, आप लोग वापस आओगे जनवरी में नए सेमेस्टर में. अगर सिचुएशन भगवान ना करे ऐसे ही चलता रहा, then we don't know, next semester also may get into, so that depends on the situation. ओके सर. ठीक है. अच्छा चलो फिर तो हम लोग 17 तारीख को एग्जाम का शेड्यूल सारा लगा दिया हूँ. ठीक है. प्लीज लेट अस ट्राई टू स्टिक टू दैट. थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत होता है, लेकिन वी हैव टू मैनेज. प्लीज कोऑपरेट. ओके सर. राइट. ओके. थैंक यू. थैंक यू Thank you, सर. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर.